पता नहीं, देखता हूँ। नहीं, Hi students, mute yourself. So we'll quickly finish this determinants of dividend policy and then we'll move to next topic. We were studying determinants of dividend policy last week and we covered all these points. We were discussing legal rules. I hope I'm audible to everyone and my screen is also visible to everybody of you. So we were discussing determinants. Legal rules was the next determinant we were supposed to discuss. So there are certain legal restrictions on the companies for the dividend payments. In general, also in general terms, also government has certain policies as far as the dividend payments by the private companies to the shareholders are concerned. They have to follow those legal rules also and frame the policy, dividend policy, according to those guidelines framed by the government to be followed by all the companies. It is legal to pay the dividend only if the capital is not reduced post payment. So that this is also a legal rule by the government that your capital must not be reduced. If you're paying the dividend to the shareholders and after paying the dividend your capital is getting reduced, then the dividend should not be paid. It is very legal that the company's capital will not be reduced to whatever it has last year. It will not be reduced just to pay the dividends. So dividend may not be paid if paying the dividends the capital is going to be reduced. So these rules are in place to protect the creditors interest, because if the capital and capital of a company would be reduced, then those people who actually have invested as the principal amount, that particular amount should not be reduced. Capital reducing means that the company is not capable enough to pay back the principal amount also which is invested or paid to the companies by the investors. So in order to protect their or safeguard that particular interest of the creditors or maybe the investors in the company, the legal rules are being laid by the government कि dividend आप तब नहीं पे करेंगे कि अगर dividend को पे करने के बाद आपकी capital reduce हो. So capital has to be at least the same, or it has to be it can be increased, but capital can only be reduced in one form, that we are repaying or paying back the amount which we have raised from the market. Means if somebody, like if we are paying back the principal amount to the shareholders what they have invested, or to the debenture holders, or to the business banks in the form of loan, the principal amount can be repaid, only then the capital can be reduced. But in order to pay the interest or dividend or something, the capital should not be reduced. ये लीगल रूल होता है जो भी है गवर्नमेंट का कंपनीज के लिए फॉलो करने के लिए. Growth. Now growth is one of the factor which is directly impacting the dividend. More growth in the company, more dividend to be paid, and the company is not growing. And moreover, if the company is at the growing stage, means that if they really want to retain the profit in order to invest further,
for the growth or expansion or something, then they can proportionately divide the dividend and see that how much amount or what ratio of their earnings they have to retain, and the rest can be paid as dividend. Or it can be like if the company has reached to a level where the growth, enough of the growth has been attained or achieved by the organization, then maybe they can choose to pay higher dividends. Inflation means the continuous increase in the prices in the market for anything and everything. तो अब प्राइस का मतलब है, हो सकता है हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है जिसको हम बेचेंगे इन द मार्केट, दैट प्राइस ऑफ दैट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड, बट उससे पहले हमारी कॉस्ट्स विल आल्सो बी इंक्रीज्ड, क्योंकि हम कुछ भी जो भी कॉस्ट हमारा लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है या रॉ मटेरियल का कुछ कॉस्ट है या ह्यूमन कैपिटल का कुछ भी कॉस्ट है, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो सारी कॉस्ट भी कंपनी की बढ़ी जाती हैं। जैसे कि पहले रॉ मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट पे मिलता था, अब वो एक्स+1 पे मिलेगा या एक्स+2 पे मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल की, जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है कि जो भी एम्प्लॉयज़ और द लेबर इज़ इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन, उसका अगर कॉस्ट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन से उस पर भी इफेक्ट आएगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ गया। तो कंपनी की प्रोडक्शन का कोई भी गुड या सर्विसेज जो भी हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस में हम कर रहे हैं, उन सब का कॉस्ट भी बढ़ गया। सो इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट्स कंपेल कंपनीज टू रिटेन मेजर पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स। तो इन्फ्लेशन से होता है कि वो फिर हम क्या करेंगे, जो कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो रादर वी विल रेज मोर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, वी वुड रिटेन आर अर्निंग्स ओनली इन ऑर्डर टू मीट दैट high cost which are increased because of the inflation, and that will obviously reduce our dividend. So dividend policy will obviously be getting impacted because of inflation, कि अगर inflation हो रहा है, higher prices हो रहे हैं हर चीज़ के market में, तो हमें हमारी हर cost जो भी है, cost of production है, वो भी हमें higher price पे मिलेगा। चाहे वो land हो, labor हो, capital हो, कुछ भी हो, वो हमें higher price पे जो मिलेगा, तो हमारा cost of production ultimately बढ़ जाएगा और आउटपुट जो है वो हमको फिर एक हायर कॉस्ट में मिलेगा देन दैट ऑफ द अर्लियर कॉस्ट। सो दैट मीन्स दैट हमारा प्रॉफिट विल बी रिड्यूस मीन्स देन द डिविडेंड्स विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, firms aiming for more control in the hands of current shareholders prefer a conservative dividend payout policy। क्या होता है कि अगर more number of shareholders would be there, तो the control of the company would be in more hands। मीन्स ज़्यादा शेयर होल्डर्स, ज़्यादा ओनर ओन्ड कैपिटल है, ज़्यादा ओनर्स हो जाएंगे और कंट्रोल जो है वो ज़्यादा हाथों में चला जाएगा, रादर देन इफ़ वी विल हैव लेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन दी कंपनी। तो जो है हम डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा सा कंजर्वेटिव, इट इज़ इम्पेरेटिव टू पे फ्यूअर डिविडेंड्स टू रिटेन मोर कंट्रोल एंड अर्निंग्स इन द कंपनी। In a nutshell, what management does is, management of a company is completely free to frame the required dividend policy। मैनेजमेंट फ्री तो है कि कंपनी थोड़ा सा, तो उनको वो जो लीगल रूल्स जो कंपनी ने बना दी, गवर्नमेंट ने फ्रेम कर दिए कंपनीज को फॉलो करने के लिए, वो फॉलो करेंगे। या अगर कोई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है इन समथिंग एज फार एज पॉलिसीज आर कंसर्न, या कैटेगोरिकली डिविडेंड पॉलिसी के लिए अगर कोई चेंज गवर्नमेंट ने पॉलिसी या गाइडलाइंस निकालनी है कंपनीज के लिए, तो वो उन्हें रखना पड़ेगा कंसिडरेशन में। अदरवाइज कंपनीज आर और द मैनेजमेंट इज फ्री, मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री टू फ्रेम एनी पॉलिसी विद इन द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो डिविडेंड पॉलिसी का भी है, दे आर फ्री टू फ्रेम वेदर इट इज इरेगुलर, इट इज अनस्टेबल, इट इज स्टेबल, रेगुलर, no dividend, whatever they want to frame। So there are no obligations to be there too। So the company needs judicially weigh all above mentioned factors जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं and formulate the balanced dividend policy। बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये है कि इससे बेनिफिट हो कंपनी को भी, ऐसी पॉलिसी हम फ्रेम करें जिससे कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है और शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एनीबडी हु हैज इन्वेस्टेड देयर मनी इन द कंपनी हैव सम एक्सपेक्टेशंस टू अर्न समथिंग एंड नॉट जस्ट for the charity। Nobody is doing charity over here while making their investments in any organization or anywhere। हम कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो हम किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे कि ठीक है हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा तुम रख लो, तुम लगा लो। Everybody really wants to or expect to earn something in or maybe against that investment, so they should also be happy। Plus at the same time we are also not getting hampered, our businesses should not get hampered, our profits should not be reduced, and our market value of the organization
वैल्यूएशन शुड आल्सो नॉट बी कमिंग डाउन। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए हमें एक ऐसी आइडियल या बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी एज द फाइनेंशियल मैनेजर और मैनेजमेंट हमको ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि एवरीबडी इज हैप्पी। Our motto should be that our shareholders are happy after investing with us, because they are the ultimate marketer of our organization. They would market indirectly about our organization and its reputation in the market. जैसे कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन उठा सकते हैं, उसका डिविडेंड पॉलिसी देखें, जैसे मैंने विप्रो का लिया है, दिस इज लिटिल ओल्ड डेटा, लाइक 2 years बैक डेटा. So if we see the dividend policy of this organization, which is like an MNC now and operating in more than one country, and they have declared their dividends every year for past 5 years, and they are following a regular dividend policy, making the payments of the dividend in time and having a regular policy, and also distributing the cash dividend. Maybe dividend can be distributed in different forms, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं in the next topic. डिविडेंड जो है वो क्या सिर्फ कैश में भी होता है, मनी की फॉर्म में भी होता है, या और कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है जिसके जिसके फॉर्म में हम डिविडेंड को पे भी कर सकते हैं. ठीक है, वो फॉर्म्स हम भी नेक्स्ट पढ़ेंगे. दिस टॉपिक इज डन एज फार एज द डिविडेंड पॉलिसी, दैट व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड पॉलिसी, एंड व्हाट आर द determinants or the factors we should consider while framing the dividend policy. These two topics are basically completed with this slide. So any questions are welcome, and otherwise I'll just share with you the new one, the new next topic. Now, if you will refer to your syllabus, then this determinants of dividend policy was, it is basically the last topic, which also includes the dividend models. So there were certain experts who have given the dividend models, और अब हम उनको इंडिविजुअली मॉडल्स को पढ़ेंगे कि उनका उनका एक मॉडल क्या कहता है कि व्हाट डिविडेंड शुड बी paid as, what dividend is depending upon, what are the factors which are depending upon the dividend for any organization to be framed, policy to be framed, या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या होता है, क्या उनके assumptions हैं. ये सब हम 3 मॉडल्स हैं हमारे पास, वॉल्टर, गॉर्डन एंड एमएम का हम ऑलरेडी एक थ्योरी पहले भी पढ़ चुके हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में एमएम ने दिया था, वही सेम पर्सन ने अपना डिविडेंड मॉडल भी दिया है, और एक मॉडल है हमारा गॉर्डन और एक मॉडल है हमारा वॉल्टर, जो एक्सपर्ट्स ने दिए. सो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो अब आपको, आई होप न्यू आपको स्क्रीन मेरा जो मैंने शेयर किया वो आपको दिख रहा होगा. So next is dividend models basically. Just a minute, my computer is okay. So I hope different models of dividend policy, ये वाला स्लाइड सबको दिख रहा होगा अभी. इस स्लाइड में इस स्लाइड में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमें से. वी कैन जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ दैट दीज आर द मीनिंग्स इन एवरीथिंग, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ व्हाट डिविडेंड पॉलिसी इज. वी ऑलरेडी हैव concluded this. You can go through with these statements while preparing for your tests and for examinations, although we have covered it in the last slide only, just the last topic we discussed. टाइप्स ऑफ डिविडेंड हम देख लेते हैं, ये हमने पहले नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा था, लेकिन टाइप्स ऑफ डिविडेंड नहीं पढ़ा था. डिविडेंड पॉलिसीज कौन कौन सी तरह की होती थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेगुलर, इरेगुलर, नो डिविडेंड पॉलिसी या स्टेबल kind of, वो सब those were basically the kind of these types of the dividend policy. But now these are dividend types कि कौन कौन सी फॉर्म में या कौन कौन सी फॉर्म में हम बेसिकली डिविडेंड को दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में.
जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि एनीथिंग, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एनी शेयर आउट ऑफ आवर प्रॉफिट अर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। हमने ये तो पढ़ लिया, हमें पता है कि ठीक है प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट होता है जो हम डिसाइड करते हैं कि इतना अमाउंट या इतना पार्ट हम लोग, इतना फंड जो है हमने अर्न किया प्रॉफिट से, ये हम डिविडेंड के तौर पर या डिविडेंड की फॉर्म में हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ ये सारे टाइप्स हैं कि इन टाइप्स में हम डिविडेंड को दे सकते हैं। एक तो है कि हम कैश में ही दे दें। At times it happens that if the organization really thinks कि हम डिविडेंड जो है कैश में ना पे करके किसी और फॉर्म में भी पे कर सकते हैं। वो कौन सी दो फॉर्म होगी? स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड या प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी हो गया कि जैसे कोई एक फिजिकल कुछ भी प्रॉपर्टी हमने दे दी, या हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बॉन्ड्स दे दिए, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ बॉन्ड्स देती, मे बी हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप है, उस कंपनी के कुछ छोटे मोटे शेयर्स का तौर पे हमें स्टॉक डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं। सो कैश डिविडेंड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्या है कि हमने आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स कुछ अमाउंट हमने रखा कि हम इतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमने मे बी डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया या इन वट एवर फॉर्म। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैश डिविडेंड कि हमने उनको लिटरली एक लिक्विड फॉर्म में हमने पैसा उनको दिया एज डिविडेंड, वो कैश डिविडेंड हो गया। स्टॉक की फॉर्म में भी दे सकते हैं, बॉन्ड की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इफ द डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड। इट इज पेड periodically out of business concerns, and cash dividends are a common and popular type of which is followed by normally all the organizations, because going for stock dividend, bond dividend or property dividend is little complex in that of the cash dividend। हमने बहुत easy process अगर follow करना है और हमें लगता है कि cash हमारे पास है इतना इस फॉर्म में कि हमने out of our earnings we have like finalized some amount, this is to be distributed as dividend, then we can simply transfer it to the account of the shareholders, and that will be termed as cash dividend। Stock dividend क्या होता है? It is paid in the form of the company stock due to raising more finance। हमने उनको मतलब ये बोल दिया कि नाउ क्योंकि सब कैश एक तरह से नहीं दे रहे हैं हम, और उनको कैश की इक्विवेलेंट कुछ हमने अब शेयर्स ही दे दिए। जैसे कि एक पर्सन के पास सपोज पहले 10,000 के शेयर्स थे और उसको हमें 1,000 डिविडेंड देना है आउट ऑफ दैट 10,000 इन्वेस्टमेंट, तो हमने उसको 1,000 रुपीज़ कैश ना दे के, जो कि अगर हम कैश देते तो वो कैश डिविडेंड में आ जाता, अब हमने उसको 1,000 के शेयर्स दे दिए अपनी ही कंपनी में। तो नाउ ही इज होल्डिंग 11,000 रुपीज के शेयर इंस्टेड ऑफ 10,000। 1,000 उसको जो डिविडेंड देना था वो हमने उसको स्टॉक के फॉर्म में दे दिया। Now he is the shareholder of 11,000. So next year, if he will be earning dividend, he will be earning dividend on 11,000. Without taking that 1,000 from him, we have issued him some stock or some share of in the share capital itself। तो वो उसको एक तरीके से स्टॉक डिविडेंड मिल गया। अंडर दिस टाइप ऑफ डिविडेंड कैश इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस कंसर्न, कि मतलब हमारा कैश हमने बिजनेस में रिटेन भी कर लिया, जो हमें कैश की ज़रूरत थी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमने अपने ऊपर लेकिन लाइबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं एक तरह से। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह से 10 की जगह 11 कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स को सभी को अगर हम इस फॉर्म में दे रहे हैं तो हमें थोड़ा 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 प्रोपोर्शनेटली, जितना भी जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है प्रोपोर्शनेटली उसको उतने ही अमाउंट का, या जितने भी अमाउंट का उसका डिविडेंड प्रोपोर्शनली कैलकुलेट होकर बनता है। सबको हमने डिसाइड किया कि कैश में उसका डिविडेंड इतना बनता है, तो हमने उसका शेयर इन द कैपिटल वी इंक्रीज, एंड वी लिटरली इशू देम द न्यू what do we say document as the share or something, whatever we have issued while you know taking the investment from him and issuing him that legal document in the form of share or whatever। तो हमें डिविडेंड की फॉर्म में वही हम डॉक्यूमेंट भी उनको शेयर कर देते कि नाउ यू आर द ओनर ऑफ मोर कैपिटल विदाउट इन्वेस्टिंग। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक तरह से कि हम उनको कुछ तो दे ही दिया। ठीक है, दिस इशू इज गिवन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ऑब्वियसली जो लोग हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं बिजनेस में, या जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को हम ये स्टॉक डिविडेंड दे सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही होगा, ऐसा नहीं है कि न्यू को हमने दे दिया। न्यू को हम दे ही नहीं सकते क्योंकि डिविडेंड है
तो new person will not get dividend until he has already invested. Dividend is paid to only the existing shareholders. So in this type of like stock dividend also it is paid, although every kind of dividend is paid to the existing shareholders only, but ये इसलिए categorically stock dividend में point डाला गया that it is issued only to the existing shareholders, क्योंकि कोई एक new person को हम नहीं देंगे कि तुम ये share रखो और you will not pay anything, because they are new and they are not entitled to get anything in the form of dividend from the company, so they have to just pay and take the dividend or take the share document or whatever. Next is bond. Bond dividend is also known as scrip dividend. If the company does not have sufficient funds to pay the cash dividend, the company promises to pay the shareholder at a future specified date with the help of some issue of the bond. बहुत सारे ना ये बॉन्ड पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं कि कोर्ट्स में ये पेपर्स हमको मतलब बॉन्ड पेपर बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कि कंपनी एक तरह से स्टेटमेंट देती है रिटर्न में कि हाँ हम आपको ये पर्टिकुलर डिविडेंड इतना अमाउंट इस सो एंड सो डेट में देंगे या इस डेट से इस डेट के बीच में दे देंगे, कभी भी जो भी उनको लगता है कि राइट है फॉर देम, they just write the exact thing, and this basically bond dividend is kind of a legal surety, and they get something instead of cash or instead of their shares also, कि वो addition to share capital आप shares नहीं आपको दे रहे हैं but आपको एक confirmation दे रहे हैं legal document में, जिसके बेस पर जो कि हम अगर कंपनी पे नहीं करती उस टाइम में तो उस बॉन्ड पेपर के बेसिस पे हम कंपनी को स्यू कर सकते हैं, स्यू कंपनी को के ऊपर केस कर सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं collect the dividend amount. So bond dividend समझ आया? Bond dividend basically is when company does not have the enough amount of, you can say, cash to be distributed, and company also does not want to pay it in the form of stock, maybe in order to reduce its liability, क्योंकि stock dividend से भी liability तो बढ़ेगा ही, तो वो उनको क्लैरिफिकेशन दे देती है पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे साइन करके अथॉरिटी जो भी होगी कि दिस इज द सो एंड सो इन फ्यूचर डेट वी assuring you that we'll be pay you the dividend in cash or whatever way we would be able to. Property dividends are paid in the form of some asset, maybe other than cash. Cash तो सबसे easy और जिसे बोलते हैं ना मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है डिविडेंड का भी या किसी का भी. एवरीबडी वुड वांट टू एक्सेप्ट anything which is to be paid to anybody in the form of cash only. Liquid money हर किसी को पसंद आता है कि yes we would love to get the dividend in the form of cash, but ये stock bond और property otherwise कुछ और चीजें हैं जो कि कंपनी अपनी ईज के लिए देने लग जाती है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, कि if you are not able to make it in the form of cash, please take it in the form of this. तो प्रॉपर्टी हो गई कुछ एक एसेट फॉर्म में हमने उनको कुछ भी दे दिया बट ये रेगुलर नहीं होता बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डिविडेंड, क्योंकि कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट है प्रॉपर्टी फॉर्म में देना. बट दिस टाइप ऑफ डिविडेंड इज बेसिकली not very in general, it is not followed in India, but there are many companies which are following it, which are not Indian companies but operating in India, and since their corporate offices are in some other country, headquarters दूसरी countries में है, तो वो वहाँ की policies के हिसाब से चलते हैं, तो property dividend भी वो लोग follow करते हैं और कुछ ना कुछ एक asset नेम पर कर देते हैं, maybe in the name of the shareholders to pay in the form dividend in the form of property. ये भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. फैक्टर्स डिटरमाइन, देयर वर सो मेनी फैक्टर्स which we covered in the last topic we just finished. These are all the determinants basically of the dividend policy. Then these were the types of dividend policy we have studied: regular, stable, no dividend policy या irregular dividend policy. So dividend policy के types ये हैं और dividend के types वो हैं जो हम already cover कर चुके हैं, stock में या cash में, property में या bond में. So we have to just see the question that what exactly they are asking us for. If the question is for the dividend policy types, so dividend policy को हम बहुत ज़्यादा elaborate, dividend policy के types को बहुत ज़्यादा elaborate कर देंगे और dividends भी हम उसमें बता सकते हैं, dividend भी किस तरह कितने types of dividends हैं वो भी हम बता सकते हैं. But what topic और what the question is main, हमको वो topic को ज़्यादा detail में elaborate करके
आंसर करना है। आप कोशिश करिएगा कि आप डायग्रामेटिकली आंसर कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। टुमारो इज द लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ योर थर्ड असाइनमेंट। आई विल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट आफ्टर टुमारो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। थर्ड असाइनमेंट मेरे को प्लीज नहीं टेक्स्ट करिएगा आप लोग, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए मैम, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, बिकॉज इस टाइम पे कंसिडरिंग ऑल योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग आल्सो आई हैव गिवन यू मोर देन 10 days टाइम फॉर जस्ट वन असाइनमेंट, और असाइनमेंट भी छोटा था ये वाला। तो प्लीज आप लोग इसको आज में कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट कल तक प्लीज भेज दीजिएगा बिफोर 12 in the night, so that I will just send the report by 21st to the management, and after that I will not accept. Once the marks and everything will be forwarded by me, I will not make any changes in that. ये जो अब तक हमने ये 8 पेजेस में पढ़ा है ये सारा कुछ, इसमें ये मोर और लेस हमने पहले पढ़ लिया था। सिर्फ टाइप्स ऑफ डिविडेंड हमने पहले नहीं पढ़ा था, कैश, स्टॉक, बॉन्ड और प्रॉपर्टी। बाकी टाइप्स फैक्टर डिटरमाइनिंग हम पढ़ चुके हैं, ये सारे चारों 8 पॉइंट्स, एंड दी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी भी हम कवर कर चुके हैं। इन्हीं को एलैबोरेट करके थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें भी, रेगुलर, स्टेबल, इरेगुलर एंड नो डिविडेंड पॉलिसी। और बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी और डिटर्मिनेंट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है वॉल्टर्स थ्योरी, कि वॉल्टर जो जो था एक एक्सपर्ट थे, जो उन्होंने क्या बोला है डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, कि क्या क्या assumptions होने चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी किस पर डिपेंड करता है, डिविडेंड किस पर डिपेंड करता है, वो हम इसको इस पर्टिकुलर मॉडल में या थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं। सो वॉल्टर्स थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी बिलीव्स द रेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड को उन्होंने समझा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड रेलेवेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी एंड टू टेक द डिसीजंस अपॉन। ऐसा नहीं है कि मतलब इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग डिसीजंस ऑन डिविडेंड और स्पेंडिंग टाइम ऑन डिविडेंड पॉलिसी तो वो इरेलीवेंट है, ऐसा नहीं है। It is basically he has focused on this, that yes, dividend policy is an important policy to be framed and is very relevant as far as when it comes to the dividend of any of the shareholders of any organization. According to this concept means, according to Walter's theory, a dividend decision of any company affects its valuation. उन्होंने बोला है, वॉल्टर ने बोला है कि अगर हम डिविडेंड तो डिसीजन नहीं ले रही है कंपनी, डिविडेंड पे करने का डिसीजन नहीं ले रही, नो डिविडेंड किसी एक ईयर में हो गया और वो कंसेक्यूटिवली 3-4 years तक रह रहा है कि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ इट या वर्थ ऑफ दैट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट को उसका इम्पैक्ट आएगा। वॉल्टर ने ये बोला है, द कंपनीज पेइंग हाई डिविडेंड्स हैव मोर वैल्यू एज कंपेयर टू द कंपनीज दैट पे लोअर डिविडेंड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट से ही थर्ड पॉइंट ये डिराइव हुआ है कि अगर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन इस तरीके से ले रही है कि हम कोई डिविडेंड नहीं देंगे, तो ये इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट, मतलब कुछ भी डिसीजन ले रही है वो वैल्यूएशन पे कंपनी का इफेक्ट करेगी। मतलब हायर डिविडेंड, हायर वैल्यू ऑफ द कंपनी, लो डिविडेंड, लो वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। वैल्यूएशन मतलब कि हमारी क्या वर्थ है मार्केट में, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो नीचे आ जाएगा हमारा वर्थ अगर हम लो डिविडेंड रेगुलरली पे कर रहे हैं। ये वॉल्टर ने कहा। वॉल्टर थ्योरी ऑल्सो फर्दर एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट है ना, मैथमेटिकल मॉडल। इसके पास एक फॉर्मूला भी दिया, वो फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगी। वी नीड नॉट टू like enter into detailing of that maybe practical things or something like that. I don't think that you would be getting any practical question on dividend policy as far as these theories are concerned, but if some expert has given certain formula, then we must be knowing कि वो formula है क्या, उस formula में उसने क्या क्या बताने की कोशिश करी और क्या क्या वो determinant है जो उसने उस formula में रखने की कोशिश करी। एटलीस्ट हमें वो पता होना चाहिए कि क्या रेट ले रहा है वो, या प्रॉफिट ले रहा है, या वैल्यू ले रहा है, या कॉस्ट ले रहा है। उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा स्टडी करके, एंड इफ विल पुट दैट फॉर्मूला इन आवर एग्जाम एंड एवरीथिंग, इट विल बी मोर स्कोरिंग फॉर अस अगर हम वो फॉर्मूला भी यूज़ करें। सो वॉल्टर ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया है, वी विल जस्ट सी दैट ऑल्सो। बट बेसिकली जो ये प्रोफेसर थे जेम्स ई वॉल्टर फॉर्म्ड अ मॉडल फॉर शेयर वैल्यूएशन दैट स्टेट्स दैट अ डिविडेंड पॉलिसी फॉर कंपनी हैज एन इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन इट्स वैल्यूएशन। ही कैटेगराइज 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ शेयर। एक तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है कंपनी का, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी को,
और IRR क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल बजटिंग में एक मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच वाज अ मॉडर्न टेक्निक. वी स्टडीड मॉडर्न टेक्निक अंडर कैपिटल बजटिंग. वी स्टडीड द फॉर्मूला आल्सो फॉर दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का. तो इन्होंने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और ये बोला है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ये दो फैक्टर्स को हमें स्टडी करना है. अगर हमारा IRR भी अच्छा है, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अच्छा है, तो हमारा वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा हो सकता है. This Walter has suggested. Now he has explained कि क्या रिलेशनशिप क्या है डिविडेंड डिसीजन का और वैल्यू ऑफ अ फर्म का. बोला तो है इन्होंने कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिपेंड कर रहा है और डिविडेंड डिसीजन जो है वो बहुत हद तक मैटर कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन में. मगर कैसे करेगा? सिंपल यही है कि अगर हम ये 3-4 इन्होंने सिचुएशंस एक्सप्लेन करें. रिलेशनशिप बिटवीन R&K के इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट, डिक्रीज इन डिविडेंड पे आउट. ठीक है, इंक्रीज अगर हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, IRR भी इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है. एंड दीज आर फर्दर फॉर्म्स वी कैन से. नाउ रिलेशनशिप कैन बी इफ द R is greater than K. R here is IRR or maybe internal rate of return and K is equal to cost of capital. K को आप C भी ले सकते हैं, R को आप IRR भी ले सकते हैं. और बस आपको टर्मिनोलॉजी को समझा देना है कि R को आपने क्या लिया है या IRR को आपने क्या लिया है. K रख रहे हैं तो K को आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया है, या CC अगर आप जो भी कुछ इसका आप टर्म रखना चाहते हैं वो आप रख के आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इफ relationship between R&K, increase in dividend payout, decrease in dividend payout. Value of the firm decreases, the value of the firm increases. Same cheese, value of the firm increases, value of the firm decreases. And no change in the value of the firm, no change in the value of the firm. Basically, these are the four, you can see, different situations which can impact IRR and the cost of capital. Assumptions, the Walter model is based on the following assumptions. ये 4-5 points हैं जो उन्होंने assumption में रखे हैं. Give me just 1 minute. I'm going to click your attendance first and then we'll continue. स्ट्रेंथ आप लोगों की अभी भी कंप्लीट नहीं आ रही है. क्या हुआ? आपके क्लास के स्टूडेंट्स अटेंड क्यों नहीं करते हैं क्लास? आज तो बच्चों का एग्जाम है एक्चुअली में ना. So we'll continue with the assumptions of Walter's model basically कि उन्होंने क्या क्या assumption करके अपना theory दिया है. ऑल दी पहला है कि इंटरनल फाइनेंसिंग. ये पॉइंट वाइज आप दिखा सकते हैं assumptions को और उसके आगे एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो उसको दे सकते हैं और एलैबोरेट करके. पहला है कि इंटरनल फाइनेंसिंग assumption पहला उनका ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड बाय द फर्म थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग्स. नो इक्विटी, नो डेट इज इश्यूड फॉर द सेम. नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट IRR एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जब कांस्टेंट रहेगा हमारा जो शेयर कैपिटल है बेसिकली, जब हमने न्यू ना तो हम इक्विटी से ले रहे हैं और ना ही हम डेट से ले रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट ही रहेगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा नहीं. न्यू कैपिटल अगर हम रेज करेंगे या एक्स्ट्रा कैपिटल अगर हम मार्केट से रेज करेंगे तो हमारे ऊपर उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ेगी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर डिविडेंड या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट.
तो वो भी कांस्टेंट रहेगा. सो कांस्टेंट IRR, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर एंड के जनरली ऑफ अ फर्म आर कांस्टेंट. जो इन्होंने फोर्थ अजम्पशन यहाँ पर दिखा, फोर्थ कंडीशन जो यहाँ पर दिखाई है इसमें. The business risks remain same for all the investment decision. Business risk same रहेंगे क्यों? क्योंकि जो basically investment decision है वो return earning की है एक तरीके से. Constant EPS and DPS. DPS is dividend per share, EPS is earnings per share. Beginning earnings and dividend of a firm never change. EPS भी same रहेगा, DPS भी. Through dividend different values of EPS and DPS may be used in the model, but they are assumed to remain constant while determining a value. अगर हम valuation किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं तो हम ये रखेंगे कि जो हमने EPS एक बार assume कर लिया वही हमारा constant रहने वाला है, and dividend will also be the same. जो हमारे पास existing capital है only that we have to focus on, and new capital will only be raised with the retained earnings only. And हम कोई नया शेयर होल्डर लाकर लाइबिलिटी अपना कैपिटल का इंक्रीज नहीं करेंगे. एंड डिविडेंड इसीलिए पर शेयर विल आल्सो रिमेन सेम, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है हमने एक बार उनको जिस हिसाब से कैलकुलेट कर देना है दैट विल बी कांस्टेंट फॉर अस. 100% रिटेंशन एंड पे आउट. रिटेंशन का मतलब है ऑल द अर्निंग्स जो हैं वो हमें अपने पास फर्दर हमें रखना ही है उसको, या तो मतलब फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी एज अ सोर्स ऑफ द एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, और मे बी इफ दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड देन दैट विल बी 100%. वी हैव टू डिसाइड इट वंस दैट ठीक है हम या तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें डिविडेंड पे करने वाले हैं, या फिर हम उसको अपना रिटेन करके इन्वेस्टमेंट को हम आगे फर्दर री इन्वेस्ट करने वाले हैं. इनफाइनाइट लाइफ, एक तो हम ये भी सोच रहे हैं कि जो कंपनी है एनी सूनर बंद नहीं होने वाली है. कंपनी विल बी रनिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, मीन्स कंपनी हैज इनफाइनाइट टाइम एंड वी कैन अर्न ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. और वो जो अर्निंग्स हैं उन अर्निंग्स को हम रिटेन कर सकते हैं 100% रिटेंशन या 100% पे आउट एज द डिविडेंड. अगर हमें ज़रूरत नहीं है फर्दर इन द नेक्स्ट रिस्पेक्टिव ईयर फॉर एडिशनल कैपिटल तो हम 100% डिविडेंड पे कर देंगे, या फिर अगर हमें ज़रूरत है तो हम 100% रिटेंशन रखेंगे. वॉल्टर ने ये बोला, या जो अपना मॉडल दिया है या ये फॉर्मूला दिया है, जो भी कुछ बताया उन्होंने कि हमारा क्या मतलब वैल्यूएशन हाउ वी विल डू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, IRR कैसे रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रहेगा. तो ही इज जस्ट टेलिंग अस कि एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट. IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम न्यू कैपिटल रेज शेयर या डेट से नहीं करने वाले हैं. या तो हम रिटेन अर्निंग को पूरा 100% अपना रखेंगे और आगे फर्दर इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर अगर हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी रिस्पेक्टिव ईयर में तो हम उसको 100% डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे एज द डिविडेंड. और हमारे पास टाइम बहुत है, हम ईयर आफ्टर ईयर वी कैन अर्न एंड वी कैन मेक आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, और उन अर्निंग से ही हम अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं बाय रिटेनिंग आवर अर्निंग्स, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है या एटलीस्ट लॉन्गर टाइम है. कंपनी इज गोइंग टू रन विद अस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी क्लोज्ड एनी सूनर. ये एक फॉर्मूला है जिसमें कि हम सॉरी MPS कैलकुलेट करने का उन्होंने फॉर्मूला दिया. मार्केट प्राइस जो है हमारे शेयर का वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसमें हम ऐड करेंगे दिस पर्टिकुलर थिंग. आर वी आर कंसीडरिंग एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ई वी आर कंसीडरिंग एज अर्निंग्स पर शेयर, डी इज डिविडेंड पर शेयर एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So P basically is the market price of the share. अगर हम अपना मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का इसने रिलेशनशिप बताया है कि डिविडेंड से मार्केट वैल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन का या मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर कितना है वो निकालने का फॉर्मूला बताया कि मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर वी कैन कैलकुलेट बाय ऑल दीज थिंग्स, कि हमने डिविडेंड पर शेयर कितना है, अर्निंग्स पर शेयर कितना है, हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन कितना है जिस रेट से हम अर्न कर रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है इसमें, वो हमारा कितना है. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को प्लीज रिमेंबर दिस एंड पुट इट एज इट इज. इफ यू रियली वांट टू यूज सम अदर अल्फाबेट इन द फॉर्मूला दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक्सप्लेन इट इन द सेम मैनर द वे इट इज एक्सप्लेन्ड हियर, कि हमने डी को क्या लिया है और ई को क्या लिया है, के को क्या लिया है एंड व्हाट इज आर. देयर आर 4 थिंग्स. IRR है, ई अर्निंग्स पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है, DPS EPS जो था, एंड
आपके इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट को आप सी लेना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सी भी ले सकते हैं, वट एवर यू वांट टू शो इट एज, बट जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट दिस इज व्हाट वॉल्टर हैज सेड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि वो वैल्यूएशन बता रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, सपोज हमारे पास 1 लाख शेयर है और इस फॉर्मूले से हमने पर शेयर की कॉस्ट मार्केट की अपनी कंसिडर कर लिए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है, हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला this is market value of one share into whatever number of shares we have given in the market or ask the capital for in the market, उससे हम multiply करेंगे तो we can always calculate the value of our fund through this formula, and this formula will give us the market value of one share. So whatever number of shares we have, we know it and we can calculate the value. So this is what Walter has said as far as the dividend thing is concerned, but he has actually assumed certain things कि हम बाहर मार्केट से पैसा नहीं उठाएंगे और हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या तो हमें अर्निंग्स को रिटेन करना है या डिविडेंड देना है, दोनों में से कोई भी चीज़ हम करेंगे तो एक ही चीज़ हम एक साल में करने वाले हैं, या तो हम 100% डिविडेंड पे करेंगे या 100% हम उसको रिटेन करेंगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं कल से वॉल्टर का कुछ रह गया 1-2 स्लाइड्स का, और उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हम देखेंगे। Thank you so much everyone for your time, and please try to do your assignments today or by tomorrow, latest by tomorrow. Thank you. Bye bye.